Hello, Assalamu alaikum. Good morning, class. This is your SST teacher, and today we'll discuss our unit number 3, which is games and rules. Firstly, in this unit, you will learn how to behave while playing games with your teammates. You will also understand the importance of doing exercise and game rules. हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे कि हमें टीममेट्स के साथ गेम्स खेलते हुए किन रूल्स और किन एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना चाहिए और हर एक्सरसाइज का एक पर्पस होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज पर्पसेस. ओके क्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज नाउ. Physical activity or exercise can improve your health and reduce the risk of developing several diseases like diabetes, cancer, and cardiovascular disease. Physical activity and exercise can have immediate and long term health benefits. Most importantly, regular activity can improve your quality of life. अब फिज़िकल एक्टिविटी से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारा इम्यून सिस्टम दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं. हम फिट रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं और हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं. जिन लोगों की रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी रूटीन में शामिल होती है, यू गोइंग टू नोटिस हाउ देर फिट एंड देव गॉट बेटर स्टेमिना. वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. आप लोग ये चीज़ भी नोटिस करोगे कि दोज पीपल हु हैव हु आर engaging themselves in physical activity, they stay healthy. They don't get sick. They stay healthy because of all the exercises that they perform and their routine in which they're exercising regularly, which helps them to stay fit and healthy. Now, why do we exercise and why do we play games? Let's talk about that कि हम exercise करते ही क्यों हैं और हम games क्यों खेलते हैं. Outdoor games जिसमें exercises शामिल होती हैं. It keeps our body healthy. हम लोग ये games और ये exercises करके अपनी body को healthy रखते हैं. We feel fresh. हम लोग बहुत energetic और बहुत fresh और बहुत active feel करते हैं after doing these exercises and playing games and running and jogging and all those activities. It is good for our body's growth. ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी गेम्स, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडीज़ ग्रोथ. आप जब छोटे होते हो एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग इन योर ग्रोइंग एज, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स, टू बी एक्सरसाइजिंग एंड टू बी प्लेइंग ऑल दीज गेम्स. We feel active through these games, through these exercises, because when you're working your body a certain way, जब आप अपनी body को एक पर्टिकुलर वे में वर्क करवा रहे हैं और रेगुलरली करवा रहे हैं, you're running, you're jogging, you're playing games, you're playing hide and seek or whatever the game it is that you're playing, आप इसके थ्रू ना बहुत एक्टिव फील करते हो. आप लेज़ी फील नहीं करते, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो. एंड थ्रू दीज एक्सरसाइजेस यू ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स. आप अच्छी अच्छी आदतें सीखते हो बिकॉज exercising itself is a very good habit and a very good manner, and once you've adopted it and once you've made it your routine, it's going to bring you so many different benefits and it's going to benefit your life in many different ways. अब एक छोटा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी. हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, फिट रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, हम लोग फ्रेश फील करते हैं. हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी जब ग्रोथ एज होती है, ग्रोइंग एज होती है, तो एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी. हम लोग अच्छी अच्छी आदत सीखते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी मैनर्स अपनाते हैं और हम बहुत एक्टिव फील करते हैं. हम लेज़ी, हम स्लीपी और ड्राउजी से और टायर्ड फील नहीं करते. Alright class, now we're going to talk about some rules that you should be taking care of while playing games. By games I mean you could be playing games like hide and seek, running, race or slides or making stuff with sand or swings or merry-go-round. It could be anything outdoor. The games I just mentioned, these are your outdoor games जो आप बाहर खेलते हो, friends के साथ खेलते हो. और and the indoor games that you're playing on your phone or your computers or your television, those games they're basically indoor games जो आप घर के अंदर खेलते हो. Okay, what are rules for a game? The rules of a game define how the game is played, what actions are allowed or prohibited, and how players should behave.
रूल्स आपकी गेम को डिफ़ाइन करते हैं कि उस गेम में आपके पास कितने रूल्स हैं और उस गेम में कितने प्लेयर्स होने चाहिए और उस गेम में कौन कौन सी चीज़ होगी। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रूल फॉर अ game basically. They provide a framework for the game and help to ensure that it is fair and enjoyable for all players. वो एक framework सा आपके लिए बनाते हैं गेम में, जिससे ये मेक श्योर होता है कि गेम हर ईच एंड एवरी प्लेयर इन द गेम उसके लिए enjoyable है और fair है। अच्छा, ये जो रूल्स होते हैं दे आर नॉट ओनली अप्लाइड वाइल यू प्लेइंग गेम्स आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स। ये सिर्फ आपके गेम्स के वक्त नहीं अप्लाई होते। रूल्स हर चीज़ के लिए रूल्स होते हैं। फ्रॉम योर क्लासरूम टू योर होम, आपके घर के अलग रूल्स हैं, आपके स्कूल के अलग रूल्स हैं, आपके गेम्स के रूल्स होते हैं, आप फ्रेंड्स में रूल्स रख लेते हो, और कुछ ऐसी गेम्स होती हैं इंडोर जिनमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो रूल्स एवरीवेयर, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह रूल्स अप्लाई होते हैं। Okay, so we're gonna learn about some rules that you should be following while playing games. Firstly, you have to behave nicely with others if you're playing games with your friends. आपने उनके साथ बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी। You have to be polite with them, you have to listen to them, and you have to play with them fairly. सेकेंडली, आपका सेकेंड रूल ये होता है कि यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। यू डोंट हैव टू बी अनफेयर। अगर आपकी बारी आने वाली है तो you're gonna वेट, you're gonna बी पेशेंट। आप वेट करोगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी एंड देन यू प्ले वेरी फेयरली। लेट्स टेक स्विंग्स फॉर एग्जाम्पल। देर इज़ टू स्विंग्स और आपके दो फ्रेंड्स स्विंग्स पर हैं, तो you're gonna वेट फॉर योर टर्न। आप ये नहीं कि आप उनको उतारो कि नो आई वांट टू सिट ऑन द स्विंग, get off. That's not the way. You're gonna wait, you're gonna be patient, and जब आपका दोस्त is done with the swing, then you're gonna play on the swing. Another rule is that you have to take care of each other. No matter what, you have to always take care of each other, your friends, or whoever it is that you're playing with. You have to make sure that they're safe, they're not hurt. उनको कहीं चोट नहीं लगी। अगर चोट लगी है तो you have to make sure कि उनको घर भेज दें। तो these are some rules that you should be taking care of. We're gonna talk about two more. ऑलवेज प्ले गेम्स ऑनेस्टली। हमेशा आपको ईमानदारी के साथ गेम्स खेलनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टू मेक द गेम फेयर एंड enjoyable फॉर एवरीबडी, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद इट। अगर आप चीटिंग करेंगे या अगर आप झूठ बोलेंगे गेम खेलते हुए, तो फिर इट्स गोना बी वेरी अनफेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, राइट? बाकी सारे जो लोग खेल रहे हैं, इट्स गोना बी अनफेयर टू देम। और अगर आप रूल्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई और भी नहीं रखेगा। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द रूल्स एंड द गेम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉलो योर टीम लीडर। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो एंड समवंस लीडिंग द गेम, समवंस द गाइड, समवंस टीचिंग यू कि आपने वो गेम किस तरह खेलनी है, कोई नई गेम है एंड दे आर गाइडिंग यू विद एवरीथिंग, या अगर वो पर अगर कोई ऐसी गेम है जिसमें लीडर की ज़रूरत है एंड देयर इज़ अ लीडर, तो यू हैव टू फॉलो योर लीडर। ऐसे नहीं कि अगर लीडर इज़ टेलिंग यू टू डू समथिंग, यू जस्ट इग्नोरिंग इट, आप बस उसको जाने दे रहे हो। इफ़ आपकी गेम में लीडर है ना, तो देर इज़ अ पर्पज़ ऑफ दैट लीडर, एंड इफ़ दे आर टेलिंग यू टू डू समथिंग और प्ले अ सर्टेन वे, तो आपको उसी तरह उनके अकॉर्डिंगली खेलना है। आपने अपनी लीडर की बात सुननी है ड्यूरिंग प्लेइंग गेम्स। ओके, नाउ आपके पेज नंबर 25 पे कुछ इम्पोर्टेंसेस लिखे हुए हैं ऑफ फॉलोइंग द रूल्स। पहले हमने गेम के रूल के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स, कि आप रूल्स फॉलो करके उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इफ़ वी फॉलो गेम रूल्स देन वी कैन कीप अदर्स सेफ। अगर हम रूल्स का ध्यान रखेंगे और जितने भी मैंने अभी आपको रूल्स पढ़ाए, इफ़ वी आर गोना मेक श्योर एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम इन आवर गेम्स, जब हम उनको यूज़ करेंगे तो सब ना सेफ़ रहेंगे। एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी सेफ। वी विल लर्न टीम वर्क। अगर हम उनका ध्यान रखेंगे दोज रूल्स का, तो वी विल लर्न हाउ टू डू टीम वर्क। हम लोग फेयर प्ले करना सीखेंगे। हम लोग ईमानदारी के साथ एक अच्छे से एक ईमानदारी वाली गेम खेलना सीखेंगे। वी इन्जॉय प्लेइंग। अच्छा, जब ईमानदारी के साथ और टीम वर्क के साथ और यू नो सब मिलजुल कर जब खेलते हैं ना, तो सबको मज़ा आता है। एवरीबडी इन्जॉयज़ प्लेइंग इट। वी ऑल गेट इक्वल चांसेस ऑफ प्लेइंग। जैसे मैंने बताया था कि यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, तो जब हम लोग
उन रूल्स का फॉलो करेंगे, ऑल दोज रूल्स, तो सबको चांस मिलेगा प्ले करने का, सबको चांस मिलेगा एंजॉय करने का. Alright class, now we're going to discuss the exercises on your page number 28. जो आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर जो एक्सरसाइज है मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, नाउ टेकिंग एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी इल. एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, या बीमार हो जाते हैं, इल हो जाते हैं. द राइट आंसर इज़ हेल्दी. टेकिंग एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी. Okay, after that, after playing games, we feel active, sad. Games खेलने के बाद हम active feel करते हैं या sad feel करते हैं? The correct answer is active. हम games खेलने के बाद we feel active. Okay, then there's Zainab likes to play dash badminton dash table tennis. आप जब book read करोगे तो you're gonna find out about Zainab. इस चैप्टर को रीड करने से आपको पता चलेगा कि ज़ैनब को बैडमिंटन पसंद थी या टेबल टेनिस. आई स्टिल टेल यू द करेक्ट आंसर टू दिस. ज़ैनब लाइक टू प्ले टेबल टेनिस. ज़ैनब को टेबल टेनिस खेलना पसंद था. वी कैन प्ले बेटर अलोन इन अ ग्रुप. हम लोग ज़्यादा बेहतर अकेले खेल सकते हैं या ग्रुप में खेल सकते हैं? हम लोग ज़्यादा बेहतर एक ग्रुप में खेलते हैं जब ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं एंड देयर इज़ plenty of people to play with, then the game becomes very enjoyable. उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव एक्सरसाइज डी, which complete these sentences with the help of word bank. आपके पास 5 words दिए गए हैं. You have to fill out the blanks underneath with these word bank. यही पांचों words यूज़ करके आपने नीचे 5 fill in the blanks को solve करना है. Let's read the words that are given in the word bank. फेयरली मतलब इक्वली. उसके बाद चीट मतलब चीटिंग करना. वेट मतलब रुकना, सब्र करना. टीज मतलब तंग करना. एंड रिस्पेक्ट मतलब इज्जत करना. नंबर 1, डैश ईच अदर वाइल प्लेइंग. चीट ईच अदर वाइल प्लेइंग, नो, हमें चीट नहीं करना चाहिए. वेट ईच अदर वाइल प्लेइंग, इट डजेंट मेक सेंस राइट कि इंतज़ार करना चाहिए जब खेलना चाहिए, नहीं ना, इट डजेंट मेक सेंस. रिस्पेक्ट ईच अदर वाइल प्लेइंग, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए वाइल प्लेइंग. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. आफ्टर दैट नंबर 2, डैश फॉर योर टर्न. चीट फॉर योर टर्न, दैट साउंड्स रॉन्ग राइट, कि चीट करना चाहिए हमें टर्न के लिए, दैट्स वेरी रॉन्ग. वेट फॉर योर टर्न, हमें रुकना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए अपनी बारी के लिए. उसके बाद है प्ले डैश. प्ले चीट या फिर प्ले टीज, बोथ आर रॉन्ग राइट, दे साउंड वेरी रॉन्ग. चीट करना, तंग करना. प्ले फेयरली, हमें इक्वली, हमें ऑनेस्टली खेलना चाहिए, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. प्ले फेयरली. उसके बाद है नंबर 4, नेवर डैश फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग. नेवर रिस्पेक्ट फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग, रिस्पेक्ट तो हो गया राइट, हमें इज्जत तो करनी चाहिए, दैट्स वेरी रॉन्ग. तो फिर क्या होगा, नेवर टीज फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग, कि हमें दोस्तों को तंग नहीं करना चाहिए गेम्स खेलते वक्त. उसके बाद है नेवर डैश अदर प्लेयर्स. नेवर चीट अदर प्लेयर्स, हमें कभी भी दूसरे प्लेयर्स को जो हमारे साथ गेम में और फ्रेंड्स खेल रहे हैं या लोग खेल रहे हैं, हमें कभी भी उनके साथ चीटिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए. ऑलराइट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. आई होप आपको बातें समझ आई होंगी मेरी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरीज हो, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी थॉरली. मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.